Assalamu alaikum everyone, my name is Mohammad Dawar Zahid and I'm a first year medical student at Aga Khan University, and today we'll be talking about how to clear the biology section of the AKU test. So let's start off this video by talking about my personal experience with the bio section. So bio is something that's really interesting if you ask me. Like if you ask me कि बाकियों के साथ comparatively is it easier, is it more difficult, तो I would say it's easier because like obviously if you're going to अगर आप डॉक्टर बनने के लिए टेस्ट दे रहे हैं तो आपका बायो में इंटरेस्ट होना है, तो इसलिए लाइक बायो इज़ लाइक समथिंग दैट्स काइंड ऑफ ईजियर, ठीक है, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है. लेकिन एज अ होल लाइक if you guys ask me about the difficulty, तो I would say the word that describes it perfectly is just disturbing. यानी it's just disturb, like ये सारी जो तैयारी है ना, it's just disturbing. It's not difficult, it's not easy, but just थोड़ा दिमाग ख़राब करती है, that's it. ठीक है, you have to be a bit smart about it. तो एक तो ये चीज़ होगी. द सेकेंड थिंग इज़ दैट सो बायो इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है. कंपेरेटिवली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज समथिंग दैट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो यू कैन विंग इट, ठीक है. लाइक आई डिड इट, मैंने FSC वाली चीज़ें भी की थी, ठीक है, लेकिन आई डिड नॉट डू दैट मच वर्क फॉर लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अगेन डोंट डू दैट, ठीक है. आई डिड इट, मेरा तुक्का लग गया था, डजंट मीन आपका भी लग जाए, ठीक है. इट्स बेटर टू स्टे सेफ. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज दैट बायो इज समथिंग कि यू हैव टू पुट इन द लॉन्ग आवर्स विद बायो. लाइक यू हैव टू लाइक चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है. एंड दिस विल बी रियली इजी फॉर FSC वाले बच्चे. लाइक FSC वालों के लिए द बायो सेक्शन इज कंपेरेटिवली इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी द ईजिएस्ट सेक्शन फॉर देम बिकॉज उन्होंने चीज़ें याद की भी होती हैं, ठीक है. तो आप लोगों के लिए लाइक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी for FSC kids you guys need to like focus more on concepts, ठीक है. कि कुछ concepts meaning like you just need to know how things are getting linked. कि let's say कि I use this example a lot कि let's just take the let's just take आपका कोई let's just take kidneys, ठीक है. You need to know कि अगर हम kidneys पे like you just need to understand the context of everything, ठीक है. because FSC में like something that I observed was कि FSC वाले बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा like you guys know अब kidney का structure, you guys know it's better than me probably, like आराम से बहुत अच्छा पता होगा, like you will know the function, you will know all of those things. लेकिन if I give you like a question that's like अगर मैं kidney को let's say कि I put the kidney in a specific chemical reagent that makes it basic, ठीक है, how would it react, कि अब क्या जो सारा the entire mechanism, how will it respond to it, ठीक है. And you guys will be a bit confused कि अच्छा मैंने अब इस चीज़ को किस तरीके से attempt करना है, ठीक है. So you guys need to build concepts like that, ठीक है. और वो like I'll explain कि कहाँ से build करने हैं, क्या resources use करने हैं, ठीक है. This is just like an example. तो अब सोचने ना लगना कि ये क्या होता है, तो दिस इज जस्ट लाइक अ रैंडम एग्जाम्पल दैट केम टू माई माइंड. लेकिन विद A-Level kids like you guys need to put in a lot of work compared to FSC वाले because you need to like memorize all of these random tidbits. बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको याद करना पड़ेगा. there is no shortcut about it and it's fun. like that's what I would say. and bio for me was like my favorite section. मुझे बहुत मज़ा आता था इसकी तैयारी करने में. तो that's pretty much it with like हाँ. So moving on to the second section of the video, which is basically talking about the topics, ठीक है. So all of you pretty much have the syllabus at this point. If you don't go to AKU's website, वहाँ पर you have the syllabus, ठीक है. लेकिन the thing is that it's a lot, ठीक है. It's a lot of work, ठीक है. And the easy way out of this is there's no easy way. सॉरी, ठीक है, देयर इज़ नो ईजी वे. यू विल हैव टू डू द वर्क. जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया, बहुत मेहनत वाला काम है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है. सो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, एंड यू कैन सी देम ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. एंड दिस डजंट मीन कि लाइक अगर हमने एक टॉपिक का नाम लिखा है वही टॉपिक आएगा और अगर हमने कोई छोड़ दिया वो नहीं आएगा, ठीक है. द बेस्ट वे इज ऑब्वियसली डूइंग द एंटायर सिलेबस, लेकिन एट द सेम टाइम दीज आर सर्टन टॉपिक्स विच आर मच मोर इंपॉर्टेंट. इनके सवाल एक सवाल तो इनका आता है एंड लाइक इन सर्टन केसेस 2-3 क्वेश्चंस इवन कम, ठीक है. सो यू नीड टू मेक sure that ये वाले topics they're really good, ठीक है. like don't mess around with them. इनके बारे में just like do them properly, ठीक है. and I'll talk to you कि करने किस तरीके से हैं, especially like bio में resources वाली कौन से, that will be the next section of the video. But about these topics, like one important thing that you need to understand is that bio के अंदर ना there's like this distinction between topics, ठीक है. so you have certain topics जो कि बिल्कुल रट्टा है, for example kingdoms कि सिर्फ रट्टा मारना है, ठीक है, and that is like a lot of work, ठीक है.
देन देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल साइकिल, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, इसमें रट्टा नहीं है, ठीक है, हाँ यू नीड टू नो लाइक नेम्स ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको चीज़ों के नाम नहीं पता तो आप कॉन्सेप्ट्स नहीं बना सकते, यू विल हैव टू लाइक मेमोराइज थोड़ा सा, लेकिन इट्स मोस्टली कॉन्सेप्ट्स। एंड देन यू हैव लाइक सर्टेन टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें रट्टा भी है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो तीनों हमने क्लासेस बनाई हैं, लाइक इनको डिफरेंटली इनकी तैयारी करनी है, ठीक है। सो लाइक यू कांट एक्सपेक्ट कि अच्छा जिस तरीके से मैं किंगडम्स की तैयारी कर रहा हूँ उसी तरीके से मैं लेट्स से सेल साइकिल की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट इन किंगडम्स। इंटरनेट पे पूरा जितने भी टीचर्स कह रहे हैं हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे हैं, अकेडमीज कह रही हैं, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट, यू नीड टू मेमोराइज इट, ठीक है। सिमिलरली लाइक सेल साइकिल को रट्टा मारेंगे आप तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको रट्टा भी भूल जाएगा और आपको सेल साइकिल भी नहीं आएगा, ठीक है। सो यू नीड टू डू इट थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ लाइक अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन, ठीक है, एंड यू नीड टू फॉलो दिस। Alright, so moving on to resources, ठीक है। So the thing is that I just established these 3 classes before, ठीक है, कि there's purely ratta, there's concept, then there's like ratta and concept, ठीक है। So you need to understand कि the resources for these 3 classes they're different, ठीक है। So let's just talk about pure ratta, ठीक है। So pure ratta is honestly something that you can just do with books, ठीक है। और इसके अंदर the thing is that certain topics like let's just use kingdoms। अब kingdoms में इतना ज़्यादा रट्टा है, अगर आप kingdoms की किताब खोलें फेडरल की, it's just too much work, ठीक है। Like I believe it's like 40 pages, ठीक है, वो चलते चले जा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है चीज़ों के, ठीक है, यू कांट डू इट, ठीक है। एंड स्पेशली कंसिडरिंग हाउ you'll have like around I believe 60 days, ठीक है, make it 70, ठीक है, give or take 5 days। तो अब द प्रॉब्लम इज दैट यू कांट डू ऑल ऑफ दैट, ठीक है, नहीं कर सकते अनलेस यू लाइक अ सुपर ह्यूमन, ठीक है, यू विल बर्न आउट नहीं होगा। तो द गुड वे टू गो अबाउट दिस इज कि यू हैव दीज SAT 2 की किताबें, ठीक है। सो द SAT 2 इज एसेंशियली अ ब्रिज, ठीक है, इट्स बिटवीन A-Levels एंड FSC, ठीक है। तो जो FSC वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने A-Levels के कुछ कॉन्सेप्ट्स करने होते हैं, उनके लिए SAT 2 इज़ रियली गुड, बिकॉज SAT 2 वो कॉन्सेप्ट्स बड़े आसानी से समझा देता है, ठीक है। फॉर A-Level kids what SAT 2 basically does is that certain for example kingdoms, ठीक है, तो SAT 2 में वो बहुत like it's in a very neat and like a very concise form, ठीक है, like you don't have to memorize all of those things, ठीक है। So SAT 2 is the first resource, like SAT 2 is the most important thing, ठीक है, especially in the last 1 month, ठीक है। SAT 2 is your bible essentially, ठीक है, कि like SAT 2 पे ही सब कुछ होना है, ठीक है। इसके बाद like the thing is that अच्छा, so we were talking about the first class, right? The intensive ones, रट्टा वाले। तो इसके अंदर SAT 2 is really good। इसके साथ साथ you can also use like फेडरल की किताबें, ठीक है, लेकिन फेडरल की किताबें में सारा ज़्यादा डिटेल में। So if you're let's say a repeater, ठीक है, गैप ईयर पे आपके पास टाइम है, ठीक है, और if you're going to give the test next year, तो I would say the first choice should be फेडरल, ठीक है। लेकिन अगर फेडरल का टाइम नहीं है तो then obviously go with SAT, ठीक है, because SAT will be really good, SAT will be really straightforward, ठीक है, और बड़ा वो आसानी से आपको चीज़ें समझाता जाएगा और रट्टे आपके लगवाता जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसके बाद रट्टे का जो सबसे मेन चीज़ होता है कि यू नीड टू रिटेन इट, ठीक है। अगर आप 2 घंटे बैठ के रट्टा मार रहे हो और आप अगले दिन उठे हो आपको सारा भूल गया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। सो फॉर रिटेंशन सो देयर इज बेसिकली 2 थिंग्स, ठीक है, there is active learning, ठीक है, and active memory recall, ठीक है। so active memory recall is basically let's just use kingdoms का example, ठीक है। तो kingdoms मैंने let's say रट्टा मारा, kingdom Animalia मैंने सारा रट्टा मारा है, ठीक है। so what I'll do is कि I'll either let's just say कि मैं अपनी अम्मी को जाके किताब दूंगा, ठीक है, जिसे रट्टा सुनाना कहते हैं, it's एक्टिव मेमोरी रिकॉल, ठीक है, और मैंने कहूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक सुन ले मेरी सारी बात, ठीक है। और व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड आई कैन लाइक राइट दैट ऑल ऑफ दैट डाउन, आई कैन मेक लाइक आई कैन मेक मैप्स वगैरह, आई कैन कनेक्ट देम ऑल, ठीक है, और मैं एरोस के साथ सारे को कनेक्ट करके एक पेज को उस तरीके से भर दूँ, ठीक है। बट एसेंशियली द थिंग इज दैट योर ब्रेन इज लाइक यू नीड टू दिमाग में आ गए, ठीक है, देन यू ऑल्सो नीड टू एसेंशियली पुट इट आउट, ठीक है। तो उस तरीके से आई नो इट साउंड्स काइंड ऑफ लाइक कॉन्ट्रडिक्टरी कि मैं निकालूंगा तो सेव कैसे होगा, लेकिन एट द सेम टाइम लाइक इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग यू ऑल्सो नीड टू रिप्रोड्यूस इट, ठीक है, लाइक उसको आपको दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लाइक मेमोराइज इट, ठीक है। सो मेमोराइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ वाई ये वाला सेक्शन इट्स गोइंग टू बी रियली लॉन्ग, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ लाइक जो बायो है इट्स मोस्टली रट्टा, ठीक है। सो यू नीड टू लाइक मेक श्योर कि जो द वे दैट यू आर मेमोराइजिंग, ठीक है, इट्स ऑल्सो एफिशिएंट, ठीक है, कि ये ना हो कि आप रट्टा मारे जा रहे हो और वो रट्टा रिटेन नहीं हो रहा, ठीक है। सो एक तो हमारे पास आ गए मेमोरी रिकॉल। द सेकंड थिंग इज डूइंग MCQs, ठीक है।
सो दिस इज समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं लेट्स से मैंने किंगडम सारा कंप्लीट कर लिया है, जो मैंने नहीं किया था, ठीक है, लेकिन मैंने किंगडम सारा कंप्लीट कर लिया है. सो व्हाट आई वुड डू और व्हाट आई शुड हैव डन इज कि मैं प्रीमेड खोलता था, ठीक है, और मैं उस पर लाइक आई वुड डू लाइक ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक लेट्स से देयर वर 400 क्वेश्चंस. मेरा होता था कि अच्छा आज मैंने 400 के 400 करने हैं, ठीक है. एंड आई थिंक विद रट्टा MCQs इज कि दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है. यू जस्ट नीड टू लाइक ऑप्शंस देखने क्लिक करना है, ठीक है. फिजिक्स का तो हाँ लाइक यू कैन डू मोर देन 100 MCQs इन अ सिटिंग, ठीक है. सर में दर्द होना शुरू हो जाता नहीं होता, लेकिन द थिंग इज विद रट्टा MCQs यू कैन डू अप टू 500 इजीली, ठीक है, हो जाएंगे, ठीक है. आई नो इट साउंड्स अ लॉट बट यू कैन डू इट वंस you're in the pace, ठीक है. तो once you're in the flow, तो अब इसका ये सीन है कि do as many MCQs as you can, ठीक है. एंड उसके बाद ऑल्सो सी लाइक जस्ट रेट योर सेल्फ, ठीक है. जस्ट मेक अ लिस्ट एंड से अच्छा यार मैंने किंगडम्स की सारे यार रट्टा मार लिया है, ठीक है. मैंने अपनी अम्मी या किसी को सुना भी दिया है. एंड द थर्ड थिंग इज दैट मैंने लाइक क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन हाउ कॉन्फिडेंट डू आई फील नाउ, ठीक है. मतलब डू आई थिंक कि अगर किंगडम्स में से कोई भी सवाल आता है विल आई बी एबल टू डू इट. जस्ट लाइक रेट योर सेल्फ कि मेरा A* आएगा, मेरा B आएगा, मेरा C आएगा, मेरा क्या ग्रेड आएगा, ठीक है. डू आई नीड टू रिवाइज दिस, ठीक है. इस तरीके से जस्ट लाइक मेक अ ग्रेडिंग शीट फॉर योर सेल्फ, ठीक है. कीप दैट लाइक जस्ट पेस्ट इट इन योर रूम, ठीक है, ताकि वेन एवर यू सिट डाउन टू स्टडी यू कैन सी कि यार मेरा किंगडम्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने इसको रिवाइज करना है. और अगर किंगडम स्ट्रॉन्ग है तो इट विल गिव यू दिस कॉन्फिडेंस बूस्ट कि अच्छा यार किंगडम सबको मुश्किल लगता है, मेरा तो हो गया है, ठीक है. सो डू यू अंडरस्टैंड. तो दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डू लाइक class 1 properly. The class 1 is again ratta, ठीक है. Alright, so moving on to the second class. So जो second है it's basically concepts, ठीक है. तो conceptual topics, अब उसकी भी like I'll give a list as well कि conceptual topics कौन से हैं, ठीक है. So the thing is that with these topics ना you do need a teacher or someone basically teaching it to you, ठीक है. आप खुद नहीं इसको कर सकते unless you're very smart, and even if you are it'll just take too much time, ठीक है. लेट्स से कि आप सेल साइकिल पहली दफ़ा कर रहे हो, ठीक है. रट्टा मार सकते हो लेकिन रट्टा नहीं चाहिए, AKU को रट्टा नहीं चाहिए, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेल साइकिल एक्चुअली कैसे हो रहा है, ठीक है. सो फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू इज आई वुड सजेस्ट इफ यू आर एट एन अकेडमी, ठीक है, तो अकेडमी के टीचर ऑब्वियसली लाइक होपफुली इफ इट्स अ गुड अकेडमी वो समझा देंगे, लेकिन आई एम पर्सनली अगेंस्ट अकेडमीज, ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू इज कि यूट्यूब पे लाइक देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ रियली गुड चैनल्स, ठीक है. वी हैव आल्सो एडेड इनके लिंक्स in the description below, okay. So what you can do is you can check these channels out, and one of the rules that you need to understand is कि लाइक 4-5 चैनल्स होंगे. आपका दोस्त कह रहा होगा अच्छा मैं ये XYZ मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उनका टीचिंग स्टाइल आपको अपील नहीं करेगा, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है. फाइंड समवन दैट वर्क्स फॉर यू, मे बी दे आर नॉट इवन इन द लिस्ट बिलो, ठीक है. कोई रैंडम बंदा हो लेट्स से जो पढ़ा रहा हो उससे पढ़ लो, जो जिसकी भी बात समझ आ रही है उससे जाके समझ लो, ठीक है. दैट्स द रूल विद दिस, ठीक है. डोंट गो के डोंट जस्ट गो विद द क्राउड कि सारे अच्छा इस टीचर की वीडियोज़ देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन मैंने फिर भी देखनी है, ठीक है. सो जस्ट मेक श्योर यू डू दिस, बिकॉज लाइक मेरी ये गलती थी कि मैं इन द स्टार्ट आई वाज फॉलोइंग दिस रैंडम यूट्यूब चैनल जो कि लाइक काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, एंड मुझे समझ नहीं आता, लेकिन बिकॉज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एट द अकेडमी वर लाइक कि नहीं ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम तो इसी से पढ़ते हैं, ठीक है. सो मेरे लिए खिचड़ी बन गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था. सो लाइक जस्ट फाइंड समवन दैट वर्क्स फॉर यू एंड स्टिक विद हिम, ठीक, और हर, ठीक है. सो दैट्स द थिंग विद द कॉन्सेप्ट्स वाला, ठीक है. एंड अगेन सेट 2 इज़ प्रीटी गुड विद दिस, ठीक है. और FSC वाले बच्चों के लिए आई वुड से डोंट पिक अप A-Levels की किताबें, बिकॉज A-Levels इज़ मच डिफरेंट, ठीक है, कंपेयर टू FSC एंड ऑल्सो द AKU टेस्ट, ठीक है. तो डोंट पिक देम अप बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स होते भी बहुत एक्सटेंसिव, एंड यू डू नीड अ टीचर लाइक स्पेशली लाइक A2 बायो के लिए यू डू नीड समवन टीचिंग यू इट. तो इसलिए डोंट पिक दोज बुक्स अप, ठीक है. डोंट गो एंड बाय लाइक आई हर्ड पीपल बाय रेड स्पॉट के पास पेपर्स, ठीक है. और रेड स्पॉट के पास पेपर्स अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं FSC वाले बच्चे, ठीक है. रेड स्पॉट इज बेसिकली A-Levels एंड O-Levels की किताबें लाइक पास पेपर्स. प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है. मैंने A-Levels किया, मैंने कभी रेड स्पॉट नहीं किया, ठीक है. सो यू डोंट नीड टू डू इट, ट्रस्ट मी. तो सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द क्लास 2, ठीक है. एंड दिस इज लाइक ये है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है. बिकॉज AKU ने रट्टा नहीं देखना, MCAT ने हाँ देखना है रट्टा कि अच्छा बच्चे का रट्टा कितना अच्छा है, AKU ने नहीं देखना, ठीक है. AKU ने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे आपको टेस्ट करना है. सो जस्ट मेक श्योर दिस कॉन्सेप्ट्स दे आर रियली गुड, ठीक है. यू नीड टू गिव लाइक द मोस्ट अमाउंट ऑफ अटेंशन टू दिस, ठीक है. इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा लेकिन इसमें ज़्यादा अटेंशन लगेगी. सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दोज टू थिंग्स. तो जस्ट मेक श्योर कि इस चीज़ के बारे में यूर clear with this, and let's just move on to the next section now. So moving on to the last class, which is basically concepts and ratta, ठीक है. For example, biological molecules, ठीक है, इस तरह की चीज़ें. अब इसमें इतने ये वाले टॉपिक्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन AKU does like to test you on these, ठीक है.
सो एन एग्जाम्पल दैट्स कमिंग टू माई माइंड इज वो जो हार्मोन्स वाला सारा चैप्टर है, ठीक है. अब उसमें यू डू नीड टू नो कि अच्छा लेट्स जस्ट से कि आपका एक स्पेसिफिक ऑर्गन कौन से हार्मोन्स निकाल रहा है, ठीक है, और वो उनके इफेक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, ठीक है, और वो इफेक्ट प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं लाइक उनकी एसोसिएटेड डिजीजेस क्या हैं, ठीक है, यू नीड टू नो दैट, ठीक है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रट्टा, ठीक है, बट देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एज वेल, हाउ डू दीज हार्मोन्स एक्चुअली वर्क, ठीक है. तो ये वाले टॉपिक्स ना देयर नॉट अ लॉट, ठीक है, कम है काफ़ी, लेकिन द थिंग इज दैट AKU लव्स टू गिव क्वेश्चंस ऑन दीज, लाइक ये सबसे ज़्यादा लाइक फेवरेट लाइक AKU का वो है टॉपिक, AKU के टॉपिक्स हैं, ठीक है. सो इसके लिए यार द थिंग इज दैट वीडियोज़ एंड बुक्स बोथ, ठीक है, लाइक क्लास 1 क्लास 2 जो थी ना, ठीक है, क्लास 1 वाज रट्टा, क्लास 2 वाज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये इन दोनों का लाइक एक एक मिक्सचर, एक खिचड़ी बनी हुई है, ठीक है. सो यू नीड टू यूज बोथ ऑफ दीज, ठीक है, यू नीड टू बी रियली स्मार्ट विद दिस, बिकॉज अगेन दिस इज इट्स नॉट लॉट, इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसको बहुत ध्यान से करना है. एंड इसके लिए अगेन द रिसोर्सेज आर लाइक प्रीटी सिंपल इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, लाइक रिसोर्सेज जो पीपल से अच्छा कहाँ से करना है, दैट्स रियली सिंपल, ठीक है. Federal if you have time, ठीक है, for रट्टा stuff, ठीक है. SAT 2 if you don't have time, ठीक है. And essentially यार SAT 2 is the main thing, like SAT 2 is like सबसे टॉप की चीज़, ठीक है. So SAT 2 is going to be your best friend in the next few months, ठीक है. तो SAT 2 को सबसे अच्छी तरह कर लो and it will help you in all of these things. And again videos, ठीक है, just make sure कि कोई चीज़ है like मुश्किल है, नहीं समझ आ रही, ट्राई अगेन, गो वॉच अ वीडियो, ठीक है, किताब से पढ़ो, जस्ट मेक श्योर दैट यू क्लियर दीज क्वेश्चंस दैट यू हैव इन योर माइंड, ठीक है. तो जस्ट ये ना हो कि पेपर से एक दिन पहले यू लाइक अच्छा यार सेल साइकिल याद तो है मुझे, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है, लेकिन आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है. डोंट डू दैट पहले दिन से, लाइक जस्ट मेक श्योर कि योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड. एंड अगेन बायो में इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का काम नहीं होता, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि कॉन्सेप्ट्स वाला कम होता है, लाइक the workload is less but it's more important, ठीक है. So that's pretty much it with the resources. We've linked all of these down, ठीक है. And इसके साथ साथ we also have a WhatsApp group जहाँ पे we do send resources वगैरह, and उसमें like हमने काफ़ी ज़्यादा भेजी हैं, तो those are pretty good. Alright, so moving on to the last section, which is basically general tips and tricks, which will inshallah help you a lot, ठीक है. And also like I do have to make a few clarifications as well, ठीक है. So one of the questions that kids ask a lot is कि SAT 2 का टेस्ट देना होता है, like SAT 2 का एग्जाम तो नहीं देना होता. तो no, SAT 2 used to happen like 2 years ago. It used to be used for admissions in the US, लेकिन अब SAT 2 नहीं इस्तेमाल होता, तो you don't need to give like SAT 2, कोई ज़रूरत नहीं है, ना दो, ठीक है. तो और दे भी नहीं सकते, ठीक है. और इसकी जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लाइक इफ़ यू गो टू लाइक अ नॉर्मल बुक स्टोर एंड यू आस्क देम SAT 2 की किताबें चाहिए, उन्हें कहना बेटा ये तो होता ही नहीं है. तो यू आइदर हैव टू लाइक, मुझे तो लाहौर में यू हैव उर्दू बाज़ार, ठीक है, विच हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ ओल्ड बुक्स की दुकानें, तो मुझे तो वहाँ से जाके ढूंढ के लेनी पड़ी थी, ठीक है. आई डोंट नो अबाउट द अदर सिटीज़, लेकिन द ईजिएस्ट थिंग इज़ के PDFs इंटरनेट पे अवेलेबल है, सो जस्ट यूज़ दोज PDFs, ठीक है. इसके साथ साथ द सेकेंड थिंग इज़ दैट लेट्स जस्ट से कि बहुत अच्छी तैयारी कर ली आपने, लेट्स जस्ट टेक के सेल साइकिल, लेट्स से बहुत ही अच्छी तैयारी कर ली, यूर लाइक कोई सवाल दो मुझे आता है, ठीक है. व्हेन यूर एट दैट लेवल ना, then I would suggest there's this book Kaplan's MCAT, ठीक है. It's really good, like it's one of the best resources that you can find, ठीक है. लेकिन again don't use it start में because it's really advanced, ठीक है. उस टाइम पे इफ़ यू कैन यूज़ Kaplan's MCAT, ठीक है, और उसके जो सवाल हैं दोज आर प्रिटी गुड, ठीक है. तो डू यूज़ दैम, लेकिन दिस इज़ अगेन फॉर द लास्ट 2 weeks, ठीक है, कि लेट्स जस्ट से तैयारी अच्छी हो गई, और लाइक आई एम रियली कॉन्फिडेंट, आई वांट टू टेस्ट माई आई वांट टू टेस्ट इट आउट, तो देन यू कैन यूज़ Kaplan's MCAT, ठीक है. इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, ठीक है, लाइक फिजिकल फॉर्म में, तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू फाइंड इट, ठीक है, लेकिन यू कैन फाइंड PDFs फॉर फ्री ऑन द इंटरनेट, सो डू यूज़ दैट बुक, इट्स रियली गुड, ठीक है. आई यूज इट इन द लास्ट 2 weeks एंड ट्रस्ट मी लाइक इट हेल्प मी अ लॉट. इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट इनटू AKU, ठीक है. सो इसके साथ साथ द थर्ड थिंग इज that you need to the thing is because you're dealing with so much information ना, इतना ज़्यादा रट्टा मारना होता है, तो I would suggest just make a register and उसमें ना words लिखते जाओ, ठीक है. Let's just say Krebs cycle, ठीक है. Krebs cycle के अंदर coenzyme A, so just write coenzyme A, ठीक है. एंड इस तरीके से जस्ट राइट रैंडम वर्ड्स इन दैट रजिस्टर, ठीक है. एंड देन व्हेन यू डन फॉर दैट डे, तो आपने करना है कि आपने रजिस्टर खोलना है, आपने देखना चाहिए कोएंजाइम ए, आपने अपने आप से पूछना है कि अच्छा कोएंजाइम ए करता क्या है,
ठीक है, क्रैप साइकिल में इसका रोल क्या है, ठीक है, इस तरीके से आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, ठीक है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। लेट्स जस्ट टेक लेट्स जस्ट टेक अ डिजीज, लेट्स जस्ट टेक यू रेड अबाउट ब्लूम सिंड्रोम, ठीक है, तो जेनेटिक्स में आपने ब्लूम सिंड्रोम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपने करना क्या है कि आपने ना बस एक रजिस्टर के अंदर लिखते जाना है, ठीक है, कि ब्लूम सिंड्रोम, एंड देन लेट्स से यू रिवाइजिंग अ वीक लेटर, ठीक है। आपने करना है कि आपने खोलना है, आपने देखना है, अच्छा नजर पड़ी है ब्लूम सिंड्रोम पे, यूर लाइक ब्लूम सिंड्रोम होता क्या था, ठीक है, यू नीड टू रिकॉल, ठीक है, अपने दिमाग में सोचो कि शायद ब्लूम सिंड्रोम क्या होता था, ठीक है, इससे क्या होता था, इसकी प्रोग्नोसिस क्या होता था, इसकी ट्रीटमेंट होती थी नहीं होती थी, इस तरीके से जस्ट रिकॉल इट फॉर योर सेल्फ, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दिस ट्रिक डजंट रियली वर्क विद अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, इट्स लाइक अ प्योरली बायो थिंग, बायो में बहुत हेल्प करता है, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में लाइक इसका इतना कोई फायदा नहीं है, लेकिन डू दिस फॉर बायो एंड लाइक ट्रस्ट मी, मेमोरी रिटेंशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स अनदर थिंग दैट आई यूज। इसके साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट बायो इज समथिंग दैट like you need to be really smart with bio, ठीक है। So I told you, like I divided all of the topics into 3 classes, मैंने समझाया कि इसको इस तरीके से करना है, इसको ऐसे करना है, लेकिन also you need to understand कि like रट्टा is something, अगर आपने स्टार्ट में कहा ना यार रट्टा सबसे मुश्किल लगता है मुझे, मैंने तो किंगडम्स करना है, महीने बाद रट्टा भूल जाएगा, ठीक है, you won't remember anything, so you need to be a bit smart, concepts first, ठीक है, पहले concepts, ठीक है, then उसके बाद like वो जो concepts and रट्टा, and third only रट्टा, and again like just make sure that the ratta that you're doing, ratta is purely hard work, रट्टे में smart work नहीं होता, लेकिन just make sure वो जो आप रट्टा मार रहे हो, all of this memory retention, it's actually being retained, ठीक है। तो इसके लिए like I told you guys a few mechanisms that you can use, please use them, and इसके अलावा those are pretty much all of the tips and tricks, ठीक है। इसके साथ साथ like one last thing is that like for everyone who is like doing or giving their FSC or A-level exams या future में देने, because like these videos are going to stay on the website for a few years now, ठीक है। So I would suggest कि the most important thing is just make sure that whatever you're doing now, like just make sure कि bio is something, like just make sure that you do it really well, ठीक है। अगर बायो लेट्स से मैं मैं A-levels दे रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से कि मैं A1 में हूँ, मेरा A2 जो मेरे फाइनल एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक श्योर कि जो मैं A2 के लिए पढ़ रहा हूँ ना, आई एम स्टडिंग इट प्रॉपरली, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर बायो बट ऑल्सो लाइक फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, बिकॉज द थिंग इज दैट बच्चों को ये लगता है कि MCAT के टाइम पे आके पढ़ लेंगे, AKU के लिए पढ़ लेंगे, लेकिन दैट डजंट हैपन बिकॉज बायो इज अ लॉट, ठीक है। अगर लेट्स से आपका सेल साइकिल आपको A-levels या FSC से आता ही नहीं है, सेल साइकिल कभी किया ही नहीं है, तुक्के मार के चल रहे हो, तो यहाँ पे आके इतना टाइम नहीं होना कि आप कर पाओगे, ठीक है। सो यू नीड टू प्ले इट लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगेन आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल, इट्स अ मैराथन, ठीक है, इट्स नॉट लाइक 100-meter रेस, you need to run for a very long time and you need to do it in a very efficient manner. So that's it for this video. I hope you guys liked it, and इसके अलावा अगर कोई और resources हैं which you guys think that I missed out on, ठीक है, do mention them in the comments. इसके साथ साथ I mentioned our WhatsApp group as well, जहाँ पे we send a lot of resources. Please do join it as well. हमने उसकी भी link description में दी हुई है, and इसके साथ साथ I hope this helps you guys a lot, and please share it with your friends giving the test, and also subscribe because we have a lot of other videos coming up as well. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz.